عالم کا چمکتا وہ ستارہ آیا دونوں عالم کا دونوں عالم کا چمکتا وہ ستارہ آیا رب کا محبوب حلیمہ کا دولار آیا محبوب حلیمہ کا دولارا آیا اور آمنہ بی بی تیری گود میں نور بچا سنتے ہیں آمنہ بی بی تیری گود میں نور بچا آمنہ بی بی تیری گود میں نور بچا آمنہ بی بی آمنہ بی بی تیری گود میں نوری بچا بے سہاروں کے لیے بن کے سہارا کے لیے بن کے سہارا آیا بے سہاروں کے لیے بن کے سہارا سہاروں کے لیے بن کے سہارا آیا حضرت عبد المطلب نے کہا رشتہ منظور ہے سبحان اللہ پرسوں بارات لے کر آؤں گا کوئی اعتبار نہیں کہ کس ہوٹل میں ناشتہ کس ہوٹل میں کھانا آج ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے لڑکی والے سے کہتے ہیں ناشتہ کس ہوٹل میں ہوگا فلاں ہوٹل میں کھانا فلانے ہوٹل اب کچھ باراتی رکنا بھی چاہتے ہیں تھوڑا بیڈ کا انتظام کر دیجیے گا سوچنے والی بات سمجھ رہے ہیں لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا پرسوں بارات لے کر آ جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ بچل کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نبی کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں سیرت رسول اگر ہم نہیں اپنائیں گے تو کام اگر نعرہ لگانے سے صرف کام نہیں چلے گا نبی کی سیرت کو بھی اپنانا آج ہمارے بھائیوں نے کھڑا ہو کر اعلان کیا حضرت منبر پاک پر خطیب ہندوستان خلیفہ حضور قمر ملت حضرت علامہ عظیم الدین صاحب قبلہ موجود ہے ماشاءاللہ خطاب بھارت کے ہر کونے میں خطاب فرماتے ہیں اور الحمدللہ میں نے تو دیکھا ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں یہ ربیع الاول میں گئے ہیں تو سامعین کہتے ہیں محرم بیان کر دیجیے بے شک اتنا عمدہ بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کی علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ محرم کے بیان کے لیے اگلے بار ساری داری بلایا ہے اچھا ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے آج بہت خوبصورت جہاں سے چھوڑے وہیں سے شروع کر دیجیے گا اے مسلمانوں توجہ کا طالب نبی کی سیرت کو ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے سبحان اللہ آپ نے کہا کہ نکاح پرسوں بارات لے کر آؤں گا حضرت عبد المطلب پرسوں گئے چند لوگوں کو لیے گئے حضرت آمینہ سے نکاح ہو گیا المختصر یہ کہ اللہ کے مقدس رسول حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدہ آمینہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا اپنے وطن اپنے گھر کو چھوڑ کر کے حضرت عبداللہ کے گھر تشریف لاتی ہے اے مسلمانوں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مقدس حضرت عبداللہ کے پشت مبارک سے سیدہ آمینہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں جلوہ گر ہوتا ہے اب وہ نور مصطفیٰ اپنی والدہ محترمہ یعنی سیدہ آمینہ کے شکم مبارک میں فرمان چل رہا ہے وہ نور مصطفیٰ اے مسلمانوں جب دنیا میں اس وقت مکہ المکرمہ کا حال یہ تھا کہ ظلم و ستم حد سر چڑھ کے بول رہا تھا ظلم و ستم حد سے بڑھ چکا تھا ظلم و ستم کا بازار گرم ہو چکا تھا اس وقت جن لوگوں پر ظلم ہو رہے تھے اس وقت کی بچیاں خدا کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتی تھی اے مسلمانوں وہ باپ ایسا ہوا کرتا تھا یہ تاریخوں میں آتا ہے کہ باپ اتنا ظالم بن گیا تھا کہ جس کے گھر کی چھوٹی سی بچی جب اس کے آنگن میں وہ بچی چلنے کے لائق ہوا کرتی تھی جب اپنے پاؤں سے چلنے لگتی تھی اپنی چھوٹی زبان سے ایک چھوٹی بیٹی پیاری پیاری بات بولنے لگتی تھی وہی باپ ظالم باپ جو ہے اپنی بیٹی کو اچھا کپڑا پہناتا تھا عمدہ کو عمدہ قسم کے سجاتا تھا اپنی بیٹی کے بازو کو پکڑتا تھا جنگلوں بیابان میں لے کر کے جاتا
करता था। उसकी प्यारी सी बेटी अपने बाप से पूछती थी, मेरे बाप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? वो बाप कहता था, बेटी चलो दावत में लेकर के जा रहा हो। अरे मुसलमानों, जंगलों बयाबान में ले जाने के बाद वो सालिम बाप जो है अपने हाथों से गड्ढा खोदा करता था। उसकी प्यारी बेटी पूछा करती थी, बाबा ये क्या कर रहे हो? मेरे बाप ये क्या कर रहे हो? उसका बाप कोई जवाब नहीं देता था। गड्ढा खोदने के बाद अपने घर की बेटी को, अपनी लाडली को, अपनी प्यारी बेटी को वो सालिम बाप उस गड्ढे के अंदर डाल करके जिंदा दरबार किया करता था। जब अपनी बेटी को गड्ढे में डाला करता था, उसकी बेटी अपने बाप से कहा करती थी, अगर खाने को मांगू तो मत देना, अगर पीने को मांगू तो मत देना, अगर पहनने को मांगू तो मत देना, अगर खेलने के लिए कुछ गुड़िया मांगू तो मत देना, लेकिन मेरे बाप कम से कम मुझे जिंदा तो रहने दो। लेकिन वो बाप इतना जालिम हो गया था कि अपनी बेटी के दर्द को नहीं सुनता था, अपनी बेटी को जमीन में दरगोर कर दिया करता था। उन्हीं बच्चियों की सिसकती हुई बच्चियों की आवाज जब निकलती है, वो बच्चियां अल्लाह की बारगाह में दस्ते दुआ दराज करती है, ऐ परवरदिगारे आलम, आखिर ये बेगुनाह बच्चियों को कब तक जिंदा दरगोर किया जाएगा? आखिर इन बेटियों पर कब तक जुल्म किया जाएगा? ऐ मौला, इन बेटियों को इन जालिम बाप के पंजों से बचाने वाला मसीहा कब आएगा? इनके जुल्म सितम से बचाने वाला पैगंबर कब आएगा? जब वो बच्चियां खुदा की बारगाह में जब दुआ करती है, उनकी दुआ बाबे से टकराती है। और परवरदिगारे आलम मक्कतुल मुकर्रमा के सरजमीन पर यानी 12 रबीउल नूर शरीफ को सोमवार के दिन मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी में सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सिक्के मुबारक से अपने महबूब को दुनिया में भेजा। जब अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। आए मुसलमानों, आका दुनिया में आए, जब सुबह शादी के वक्त मक्का में पैदा हुए तो मक्का के अंदर चेंजिंग हो गया। मक्का के दरो दीवार महकने लगे, मक्के की गलियां महकने लगी, मक्का में इनकलाब आ गया। सुबह सवेरे वक्त सरदाराने मक्का हरम शरीफ में गए, लोग आपस में बात करने लगे, आज मक्का में बदलाव कैसा? एक सरदार कहता है कि आज मेरे घर पर मेरा बाप बीमार था, आज बगैर दवा के सही हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर दवा के सही हो गया। तो एक सरदार कहता है कि हमारे घर में जो जानवर थे उसके थन का दूध सूख चुका था, आज मैंने सुबह देखा कि उसके थन में दूध भर गया। सुभान अल्लाह। एक कहता है कि आज सुबह सवेरे मैं अपने बाग का जायजा लेने गया तो मैंने देखा हमारे बाग के कई पेड़ सूख गए थे, लेकिन आज सूखा हुआ पेड़ भी हरा हो गया। सुभान अल्लाह, सूखा हुआ पेड़ भी हरा हो गया। आपस में बातें कर रहे थे, आखिर आज मक्का में बदलाव कैसा, मक्का में चेंजिंग कैसा। वही मक्का का एक सरदार खाने काबा का तवाफ करके जा रहा था। जब वहां पे पहुंचा, उन लोगों को देखा तो कहा ये इज्तिमा कैसा है, ये भीड़ कैसी है? तो लोगों ने कहा कैसी बात करते हो, मक्का के अंदर तुम इनकलाब नहीं देख रहे हो? मक्के की गलियां महक रही है, मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्का की फजाएं महक रही है, मक्का की हवाएं महक रही है, मक्के के दरो दीवार से खुशबू आ रही है। ये तुम चेंजिंग नहीं देख रहे हो, बदलाव नहीं देख रहे हो? ये ताज्जुब की बात है कि नहीं है? तो उतने में वो सरदार कहता है ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बहुत बड़े ताज्जुब की बात है। तो सरदाराने मक्का ने कहा बता क्या बताने जा रहे हो? तो वो कहता है अभी अभी मैंने देखा है कबीले कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब जो है अपनी गोद में एक बच्चा लेकर के खाने काबा की तरफ जा रहे थे, तो मेरी निगाह ने ये फैसला न कर सका कि अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तरफ जा रहे थे या खाने काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ झुका चला गया। सुभान मुसलमान, उसने कहा अभी मेरी निगाहों ने देखा है अब्दुल मुत्तलिब खाने
काबा की तरफ जा रहे थे तो मेरी निगाह ये फैसला न कर सकी कि वो खाने काबा की तरफ जा रहे हैं या खाने काबा उनके तरफ झुका चला रहा है। मैं तो ये सोच में पड़ गया, हो सकता है उसी बच्चे की वजह से मक्का में इनकलाब आ गया है, मक्का की फजाएं महक रही है, मक्का के दरो दीवार महक रहे हैं। तो तमाम सरदारों ने मक्का में कहा चलो हम भी चल करके देखते हैं, उस बच्चे का दीदार करते हैं, उस बच्चे का चेहरा देखते हैं। तमाम सरदारों ने मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के करीब आते हैं और तमाम सरदारों ने मक्का में कहा अरे कबीले कुरैश के सरदार, अभी अभी मैंने सुना है कि आप अपनी गोद में एक बच्चा लेकर के आए हैं, लिहाजा उस बच्चे के चेहरे का दीदार करा दीजिए, उस बच्चे के चेहरे की ज़ियारत मुझे भी करा दीजिए। इतना कहना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बाहों को फैला दिया और जब सरदारों ने मक्का ने मेरे नबी के हुस्न जमाल को देखा है, नबी के चेहरे अनवर को देखा है, नबी के मुकद्दस चेहरे को देखा है, तो गोया वो सरकार आला हज़रत की ज़बान में ये कह रहे थे वो कमाले हुस्न हुजूर है, ये गुमाने अक्स जहां नहीं, यही फौजदार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ है। सरदारा ने मक्का ने कहा बरकत है जो मक्का में, बच्चे की बरकत है जो मक्का की हवाएं मक्का की गलियां महक रही है। मेरे आका दुनिया में आए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल मुख्तसर, ये मेरे आका इस खाक दाने की पर तशरीफ लाए मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर। आका कहाँ पैदा हुए हैं? मदीना। बोलिए, इतनी तकलीफ कर दी है। कल आपसे कोई पूछेगा कि उस मदरसे में इतने इतने मौलाना आए थे, इतना दूर से, आप लोग क्या याद किए? तो कोई पूछ देगा तो बताइए क्या बात, क्या बताएंगे? हाँ तो याद कर लीजिए कम से कम 3 बातें। आका कहाँ पैदा हुए? मक्का की सरजमीन पर। कब पैदा हुए? 20 मई 20 अप्रैल 570। ये 12 रबीउल नूर शरीफ को। किस दिन पैदा हुए? सोमवार के दिन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ऐसे ही याद रखा कीजिए। बढ़ो या नौजवानों, वक्त के रफ्तार तुम ही हो, चमन पे हक तुम्हारा, रौनक गुलजार तुम ही हो। और हाकिम मुतलक का जब फरमान जारी हो गया, बादशाह वक्त जो थे वो भिखारी हो गया। साहिब साहब माशाअल्लाह, हमारे दिलकश रूह तासवी साहब मौजूद हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बहुत उम्दा पढ़ रहे थे। ये नाउंसर साहब का तो कोई जवाब नहीं भाई माशाअल्लाह, नाउंसरी भी करते हैं, बड़ी अच्छी नात भी पढ़ते हैं, अल्लाह सलामत रखे। हमारे भाई भी उधर मौजूद है, सना खान मुस्तफा, आप भी तशरीफ रखते हैं। हमारे यहाँ मौलाना साहब, इमाम साहब कहीं चले गए जरूरत के तहत। हाकिम मुतलक का जब इन नौजवानों का जब मैं जज्बा देखा तो ये 4 मिसरा आ गया भाईजान। हाकिम मुतलक का जब फरमान जारी हो गया, बादशाह वक्त जो थे वो भिखारी हो गया। करबला वालों का देखो फैज जारी हो गया। आज का जलसा कई जलसों पे भारी हो गया, कई जलसों पे भारी हो गया। आज का जलसा कई जलसों पे भारी हो गया। मेरे पैगंबर कहाँ पैदा हुए भाईजान? मक्का में। हाँ याद रखिएगा, मक्का के सरजमीन पर मेरे आका जलवा कर हुए सोमवार के दिन 12 रबीउल नूर शरीफ को। एक में आता है 20 अप्रैल, 21 अप्रैल भी आता है, 571 ईस्वी मौजूद, ठीक है, इतना याद रखिएगा। मेरे नबी के वालिद का नाम क्या था? अब्बा के नाम अब्दुल्ला मुत्तलिब। अरे अब्दुल मुत्तलिब भाईजान दादा का नाम था। ऐसी लिखिएगा, हाथ में मोबाइल लिए हैं, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, समझ रहे हैं? हाँ सोच समझ कर बोलिएगा मंगनी में, वरना रिश्ते भी टूट जाते हैं। ये बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? देखा ना था, थक से कह दिया कि दिल्ली। लड़की वाले ने कहा कि आप कह रहे थे कि लड़का BA तक पढ़ा है, ये शादी करने के लायक है? ये तो लग रहा है कि 5 तक भी नहीं पढ़ा है। पूछा उत्तर प्रदेश की राजधानी का, फौरन कहा दिल्ली। बाद में कहा नहीं मिस्टेक हो गया, लखनऊ है। कहा कि अब बात नहीं मानी जाएगी, पहले राउंड में फेल हो गए। हाँ मेरे आका कहाँ पैदा हुए? मक्का के सरजमीन पर। मेरे नबी के वालिद का क्या नाम था? हजरत अब्दुल्ला। मेरे नबी की माँ का नाम क्या है? हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मेरे आका मक्का में पैदा हुए 40 साल के बाद, 40 साल के बाद अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि लोगों मैं नबी। 40 साल के बाद, 40 साल अल्लाह के नबी ने 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया। ऐलान नबूवत के बाद 13 साल फिर मक्का में रहे। कितना हो गया? 40 और 13 53। अब 53 साल की उम्र में मक्का से हिजरत करके मदीना जाते हैं और मदीना में 10 साल रहे। कुल कितना हुआ? 66। मेरे आका की ज़ाहिरी जिंदगी कितनी है? 63 साल।
63 साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। 40 साल के बाद अपने नबूवत का ऐलान किया। 63 में से 40 निकालेंगे, कितना बचेगा भाई? 53 कोई करे 23 बचेगा। अल्लाह के नबी ने आज कल इसी तरह तब्दील करा, वरना जनता के सामने धारदार तो कलकत्ता वाला हाल हो जाएगा। मौलाना साहब आंख बंद करके खिताब कर रहे थे, सब आदमी चले गए, एक आदमी बैठा हुआ है। ये नकीब लोग बयान करते हैं, हम भी सुने उन्हीं लोगों से, तो बयान करते हैं कि सब लोग चले गए, एक आदमी बैठा हुआ था। जब मौलाना साहब की आंख खुली तो बोले कि सब लोग चले गए, तुमको मेरी तकरीर बहुत अच्छी लगी? तो उसने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहा तब? कहा जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो कुर्सी हमारी है, इसलिए मैं बैठा हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों तवज्जो के साथ सुनिएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किए। 23 साल आपने इस्लाम का तबलीग किया, सिर्फ 23 साल, और वो 23 साल तबलीग का आलम ये था कि इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। मशरिक में भी इस्लाम का झंडा लहर रहा है, मगरिब में भी इस्लाम का झंडा लहर रहा है, शिमाल जुनूब में भी इस्लाम का परचम बुलंद है, यानी पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद है। आखिर अल्लाह के मुकद्दस रसूल ने 23 साल की मुद्दत में किस तरह इस्लाम को तबलीग किया कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। आज दुनिया के कुछ शर पसंद लोग कहा करते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम जुल्म से फैला है, इस्लाम तशद्दुद से फैला है, इस्लाम जबर से फैला है, इस्लाम तीर से फैला है। अगर कोई इस तरह के जुमलों का प्रयोग करे तो आप उसे जवाब दीजिएगा, जो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं उसने सही तौर पर इस्लाम को नहीं पढ़ा। आप उसे बता दीजिएगा कि इस्लाम जुल्म से नहीं फैला है, इस्लाम तशद्दुद से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम जो दुनिया में फैला है नबी के पाकीज़ा किरदार से फैला है, नबी के पाकीज़ा कैरेक्टर से फैला है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम ईद मिलादुन नबी की खुशियां मनाते हैं। नबी की सीरत को भी अपनाइए, नबी के किरदार को भी अपनाइए, नबी के कैरेक्टर को भी अपनाइए, पैगंबर के अखलाक को भी अपनाइए। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज अगर हमारे सामने अगर कोई छोटा आदमी है हम उसे लाइक नहीं करते हैं, अगर कोई गरीब आदमी है, अमीर आदमी उसे भाव नहीं देता है, अगर कोई छोटा बच्चा है हम उसे नजरअंदाज कर दिया करते हैं। लेकिन ईद मिलादुन नबी मनाने वाला मेरे पैगंबर का इखलाक ऐसा नहीं था, मेरे नबी का किरदार ऐसा नहीं था, बल्कि मेरे नबी छोटों को भी सलाम किया करते थे, गरीबों से भी प्यार किया करते थे, बच्चों से भी प्यार किया करते थे, सब लोगों से मोहब्बत किया करते थे। मेरे नबी का आलम ये है कि आज हम सलाम करने में भी हजरत लोगों का स्टेटस देखा करते हैं। अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसको धकाधक सलाम ठोक दिया करते हैं, अगर कोई छोटा आदमी है हमारे मोहल्ले का है हम उसे लाइक नहीं करते हैं, हम उसे भाव नहीं देते हैं। लेकिन ईद मिलादुन नबी के जलसा करने वाला मेरे नबी का किरदार ऐसा था, मेरे नबी की सीरत ऐसी है, मेरे नबी का इखलाक ऐसा था। आज के बाद अपने किरदार को बदल लीजिएगा, अपने इखलाक को बदल लीजिएगा। अरे मेरे नबी का आलम तो ये था कि आप बच्चों को भी सलाम किया करते थे। सुभान अल्लाह। एक रास्ता ऐसा था, एक रास्ता ऐसा था जिस रास्ते पे मेरे पैगंबर हर दिन जाया करते थे। जब मेरे आका हर दिन उस रास्ते से जाया करते थे, उस रास्ते पर बच्चे खेला करते थे। जब बच्चे खेला करते थे अल्लाह के नबी बच्चों को सलाम कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चों को सलाम कर दिया करते थे। एक दिन तमाम बच्चों ने आपस में मीटिंग किया, हमारी माँ और बहनें भी मौजूद हैं, आप भी तवज्जो के साथ सुनिएगा, आप अपना किरदार को अच्छा कीजिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्ग, इमाम साहब कहीं चले गए थे, इमाम साहब भी आ रहे हैं माशाअल्लाह, कभी टोपी पहन कर आ रहे हैं, कभी इमामा बांध कर आ रहे हैं, कभी जुब्बा पहन करके आ रहे हैं। इमाम साहब के जलवे को अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़े अच्छे इमाम साहब हैं, बड़े खूबसूरत है माशाअल्लाह, इल्म अदब के पैकर हैं, अल्लाह सलामत रखे इनको। और जब से हम लोग भी आए हैं उलमा के साथ भी ये बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं, बहुत अच्छा इखलाक पेश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इमाम साहब भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर आप चाहें कि हम खुश रहे, आपके घर के बच्चे खुश रहे, तो अपने मस्जिद के इमाम को खुश रखिएगा। सुभान अल्लाह, इमाम को खुश रखिएगा, खुश रहेंगे, खुश रहेंगे। बावकार इमाम साहब तशरीफ रखते हैं, हज़रत अल्लामा सद्दाम साहब किबला नक्शबंदी इमाम साहब पाकीज़ा मौजूदगी है इनकी। मेरे आका का तरीका था बच्चों को सलाम करते थे। सुभान अल्लाह। बच्चों ने मीटिंग कर लिया, अब बच्चों ने मीटिंग ये किया कि हर दिन नबी हमें सलाम करते हैं, आज हम लोग नबी को सलाम करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की सीरत। बच्चों ने कहा कि आज मीटिंग कर लेते हैं, आज पैगंबर को हम लोग पहले सलाम करेंगे, नबी पहले ही सलाम कर देते हैं, हम लोग कर ही नहीं पाते। बच्चों ने मीटिंग कर लिया, बच्चे छुप गए,
छुप गए, जगह जगह बच्चे छुप गए। जब अल्लाह के नबी का गुजर हुआ, एक बारगी बच्चे निकले और कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम या हबीब अल्लाह। जब बच्चों ने नबी को सलाम किया, अल्लाह के नबी मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। एक छोटा सा बच्चा आता है, आकर अल्लाह के नबी के दामन को पकड़ लिया और कहा या रसूल अल्लाह, आज तो हमने आपको पहले सलाम कर दिया है, सुभान अल्लाह आज तो हमने आपको पहले सलाम कर दिया। आप हर दिन पहले सलाम कर दिया करते थे। अब मेरे नबी का जवाब सुनिएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और मेरे नबी का जवाब सुनकर मचल जाइए और 3 नौजवान खड़ा होकर नारा लगाइएगा। जब ये बात बयान करूंगा, ऐ मुसलमानों, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ बच्चे, अगर मैं चाहता तो मैं तुम्हें सलाम कर देता, मैं चाहता तो मैं तुम्हें सलाम कर देता, लेकिन अगर मैं तुम्हें सलाम कर देता तो तुम्हारी मीटिंग बर्बाद हो जाती, तुम्हारा दिल टूट जाता। और मोहम्मद जो दुनिया में आया है, किसी के दिल को तोड़ने नहीं आया है, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे, सलामत रखे। नबी ने फरमाया कि मोहम्मद दुनिया में आया है बेटे, किसी का दिल तोड़ने नहीं बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने। आज के बाद एक ये भी ईद मिलादुल नबी के जलसे से पैगाम लेकर जाइएगा कि सलाम करने में पहल कीजिएगा। मत देखिएगा कि सामने वाला गरीब है कि अमीर है कि भिखारी है कि भीख देने वाला है कि भीख मांगने वाला है, सियासत का निगहबान है या हुकूमत का पासवान है। बस ये देखिएगा कि साहिब ईमान है। तो सलाम कर दीजिएगा। तो नबी की पाकीज़ा सीरत को अपनाइए। ईद मिलादुल नबी के हम जलसे करते हैं। नबी के पाकीज़ा, आप अपने अखलाक को अच्छा करें, अपने किरदार को अच्छा करें, अपने कैरेक्टर को अच्छा करें, इसलिए कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का किरदार बहुत अच्छा था, उस नबी का अखलाक बहुत अच्छा था, उस नबी का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। मेरे भाई, मेरे नौजवान, आप भी अपने किरदार को इतना अच्छा करें, अपने कैरेक्टर को इतना अच्छा करें कि यही चकिया का चौराहा हो, चकिया का चौराहा हो या शहाबगंज की मार्केट हो। अगर हमारे ये कौन गांव था भाई, क्या नाम है, भटरौल का अगर एक नौजवान अगर वही चकिया के चौराहे पर खड़ा हो या शहाबगंज के मार्केट में हो, तो मुसलमान के बेटे का किरदार ऐसा हो कि जब दुनिया वालों के सामने से गुजर हो, लोग उसके लोग उसके चलन को देखे, लोग उसके गुफ्तार को देखे, लोग उसके आदत अतवार को देखे, लोग उसके बात और व्यवहार को देखे। तो यही चकिया के लोग और यही बनारस के लोग कहने पर मजबूर हो जाए कि जब भटरौल के जमीन का रहने वाला, जब गरीब मुसलमान का जब बेटा इतना अच्छा है, तो मदीने वाले आमना का लाल कितना अच्छा होगा, सरकार कितने अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्तों, अपने किरदार को अच्छा कीजिए, अपने कैरेक्टर को अच्छा कीजिए। नबी का अखलाक बहुत अच्छा था। एक आखिरी बात बयान करूंगा, नबी की सीरत का अखलाक बहुत अच्छा था मेरे नबी का। आज अगर हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो हमारा किरदार अच्छा नहीं है, जिसके सबब से हम जमाने में रुसवा हो रहे हैं, जिसके सबब से हम जमाने की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी अगर हमारे किरदार अच्छे हो जाए तो हम जमाने में कामयाब। नबी का अखलाक बहुत अच्छा था। आज हम अपना स्टेटस देखते हैं, अपना वकार देखते हैं, अपनी डिग्री देखते हैं, अपना वहदा देखते हैं, लेकिन मेरे नबी से बड़ा कोई है? भाई, मेरे नबी से बड़ा कोई है? कोई नहीं है मेरे नबी से बड़ा। दुनिया के नबी का सर अनवर का आलम वो है कि दुनिया के तमाम सर मिल करके मेरे नबी के सर के बराबर नहीं हो सकते। देखिएगा मेरे नबी का आलम, मेरे नबी का इखलाक। आखिरी बात, 1 घंटा हो चुका है लेकिन 5 मिनट लेना चाहता हूँ, इजाजत? सुभान अल्लाह, कोई तकलीफ तो नहीं है? नौजवानों ने एक बार हमारे चचा लोग हाथ उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। आप हाथ उठाने में कतरा रहे हैं, कहीं आपको या रसूल अल्लाह के नारा से प्यार नहीं है क्या? या रसूल अल्लाह के नारा से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। समझ रहे हैं? सब लोग हाथ उठाएं ईमानदारी के साथ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब मेरे नबी नबूवत का ऐलान किए, बड़ी प्यारी बात है ना उनका साहब, बड़ी प्यारी बात है। नबी जब नबूवत का ऐलान किए बड़ी संजीदगी के साथ, तो मक्के के अंदर एक बुढ़िया रहा करती थी। वो बुढ़िया ने सुना, क्या सुना? वो बुढ़िया ने क्या सुना
کہ مکہ میں عبداللہ کا بیٹا نیا دین لے کر آیا ہے اور جو اسے دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بڑھیا ڈر گئی اور اپنے تمام ساز و سامان کو باندھتی ہے, نکل جاتی ہے کہ ہم مکہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے, ورنہ ہو سکتا ہے کبھی اس کا گزر ہماری گلی سے ہو جائے تو میری بھی نظر اس نبی پر پڑ جائے تو ہمیں بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا. بڑھیا سامان باندھ کر نکل گئی, چوراہے پہ کھڑی ہے, گٹھری بڑی ہے, مکہ کے بڑے بڑے نوجوان گئے, پوچھے بڑھی ماں کیا بات ہے. بڑھیا کہتی رہی سب سے کہ تمہیں معلوم نہیں مکہ میں عبداللہ کا بیٹا نیا دین لے کر آیا ہے اور جو اسے دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. لوگ نوجوان آتے پوچھ کر چلے جاتے. صبح سے بڑھیا کھڑی ہے, دوپہر ہوا, اتنے میں اللہ کے رسول کا گزر ہو گیا. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات نبی کی سیرت کا. اللہ کے نبی کا گزر ہو گیا. جب میرے آقا وہاں پہنچے تھا, آپ نے کہا بوڑھی ماں کیوں کھڑی ہو؟ تو ضعیفہ کہتی ہے میں بتاتے بتاتے تھک گئی. سب آتا ہے پوچھ کے چلا جاتا ہے, مدد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. میرے آقا نے کہا بوڑھی ماں ایک بار مجھے تو بتا دو, سبحان اللہ. مجھے تو بتا دو. تو بوڑھی ماں کہتی ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے مکہ میں عبداللہ کا بیٹا نیا دین لے کر آیا ہے اور جو اسے دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے, اس لیے میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں. جب میرے نبی سے بڑھیا یہ جملہ کہتی ہے تو میرے پیغمبر نے کہا تو بوڑھی ماں جاتی کیوں نہیں؟ تو ضعیفہ کہتی ہے کہ سامان بہت زیادہ, ایک مزدور کا انتظار ہے, کوئی مزدور مل جائے کہ میری گٹھری کو اٹھا کر جنگل میں پہنچا دے. اللہ کے نبی نے کہا میں مزدور تو نہیں ہوں لیکن اس کام کو کر سکتا ہوں. آج سے اپنے غرور اور گھمنڈ کو زمین میں دفن کر دیجیے گا. میرے نبی نے کہا مزدور تو نہیں ہوں, اس کام کو کر سکتا ہوں. ضعیفہ کہتی ہے ہمارا کام ہونے سے مطلب ہے, چاہے تم مزدور رہو چاہے نہ رہو. اللہ کے نبی نے ضعیفہ کی گٹھری کو اپنے سر انور پر اٹھا لیا. ابھی میں نے کہا تھا کہ وہ نبی کے سر انور کا عالم یہ ہے, وقت میں گنجائش نہیں ورنہ اس کی تھوڑی تفصیل کروں گا حدیث کی روشنی میں کہ نبی کے سر کا مقام کتنا اونچا ہے. اے میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے نبی نے اپنے سر انور پر ضعیفہ کے گٹھری کو اٹھا لیا. اللہ کے مقدس پیغمبر ضعیفہ کے ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں. ضعیفہ کر رہی ہے بیٹے ادھر چلو, تو نبی ادھر چلتے ہیں, کہیں ادھر چلو, ادھر ادھر لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے بڑھیا جنگلوں بیابان میں گئی جہاں پہ لکو تک علاقہ تھا, چریچ و پرند کا بھی گزر نہیں تھا, وہ ہوش و طعور بھی وہاں تک نہیں پہنچتے تھے. اے مسلمانوں, ایسے لکو تک علاقہ میں ضعیفہ نے کہا بیٹے میرے سامان کو رکھ دو. اللہ کے نبی نے بڑھیا کے گٹھری کو رکھ کر کے آنے لگے. تو ضعیفہ کہتی ہے بیٹا سنو, کم سے کم مزدوری تو لے کر کے جاؤ. تو میرے نبی فرماتے ہیں بوڑھی ماں میں نے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ مزدوری وہ لیتا ہے جو مزدور ہوتا ہے, میں مزدور نہیں ہوں تو میں تمہارا مزدوری لوں. تو بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹا لے لو, تو نے میری مدد کیا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ مزدوری میں نہیں لوں گا, میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں غریبوں کی مدد کے لیے. سبحان اللہ. نبی آنے لگے. ضعیفہ کہتی ہے بیٹا سنو, بیٹا مکہ میں عبداللہ کا بیٹا نیا دین لے کر آیا ہے, بیٹا تم بہت اچھے ہو. بڑھیا کہتی ہے بیٹا تم بہت اچھے ہو, بہت اچھے ہو بیٹا. مکہ میں عبداللہ کا بیٹا نیا دین لے کر آیا ہے, تم اسے دیکھتا اسی کا ہو جاتا ہے. بیٹا تم مجھ سے بچ کے رہنا. تو میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے بڑھی ماں جا رہا ہوں. جب میرے آقا آنے لگے ضعیفہ کہتی ہے بیٹا سنو. میرے آقا پھر پلٹ کر گئے. آج اگر کسی غریب کو, کسی بڑے آدمی کو کوئی غریب اگر 2-3 بار برائے تو اس کو غصہ آ جائے گا, اس کو غصہ آ جائے گا. ہم اتنا بڑا ہم مولانا, اب یہ چھوٹا آدمی بار بار ہمیں تنگ کر رہا ہے, لیکن نبی کا کردار دیکھیے. بڑھیا کہتی ہے بیٹا سنو. پیغمبر پھر پلٹ گئے. تو ضعیفہ کہتی ہے بیٹے تو اتنا اچھا ہے, تو نے میری مدد کیا, تو نے مزدوری بھی نہیں لیا, بیٹا کم سے کم اپنا نام تو